اور اس میں کوئی اس کا لمبا چوڑا پروسیجر نہیں رکھا گیا. اپنا جو شناختی کارڈ نمبر ہے آپ نے وہ دینا ہے اور اس کی کوئی مشکل شرائط نہیں ہے. یہ بہت آسان شرائط پہ ہم نے لکھا ہے. آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہمیں چاہیے ہوگا اور اس کے لیے آپ کو 10 لاکھ روپیہ بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے جس کے لیے آپ اسی پورٹل پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اب صرف شناختی کارڈ پر آپ حکومت کی جانب سے فوری طور پر 10 لاکھ روپے لے سکتے ہیں. جی ہاں، وہ تمام لوگ جن کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ نئی اسکیم جاری کر دی گئی ہے اور اس میں صرف گھر بیٹھے اپلائی کر کے کچھ ہی مہینوں کے اندر مطلب تھوڑے سے عرصے کے اندر آپ کو حکومت کی جانب سے یہ رقم منظور بھی کر دی جائے گی اور فراہم بھی کر دی جائے گی. اس کے لیے کوئی لمبی شرائط و ضوابط نہیں ہے، بس آپ نے اپلائی کرنا ہے اور جو کچھ آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ اپنے متعلق بتا دینا ہے. تو حکومت کی جانب سے بغیر کسی ٹیکس کے آپ کو یہ رقم دی جائے گی اور اس رقم کے علاوہ بھی کافی ایسی سہولیات ہیں کیونکہ 5 لاکھ روپے اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی مل سکتے ہیں. 10 لاکھ روپے سے زیادہ رقم بھی چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی. لیکن ایک بات ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اپلائی کون کون لوگ کر سکتے ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ بس آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ آسان سی شرائط و ضوابط ہیں. کیونکہ اب ایسا تو نہیں ہے کہ بس آپ شناختی کارڈ کسی کو دکھائیں گے اور آپ کو رقم مل جائے گی. اس کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی اور بھی شرائط و ضوابط ہوتی ہیں. مطلب آپ کو کاروبار کے لیے قرض چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ کو آپ کے کاروبار کے مطابق ہی اس طرح کی رقم دیتے ہیں. آپ کو اپنا گھر بنانے کے لیے رقم چاہیے تو وہ اس حوالے سے ثبوت مانگتے ہیں کہ آپ کے پاس زمین بھی ہے یا نہیں. اسی طرح اگر آپ کو زراعت کے شعبے کے لیے حکومت کی جانب سے رقم چاہیے تو پھر وہ آپ کے زراعت کے شعبے کے حوالے سے کوئی ثبوت مانگتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کو دینے پڑتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا یہ ذہن بھی ہوگا کہ بھئی اگر ہم کاروبار شروع کرنا چاہیں تو ہم نئے سرے سے بھی تو کر سکتے ہیں. مطلب پہلے سے ہمارے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے اور اب ہم صرف اپلائی کریں بغیر کسی ثبوت کے ہمیں یہ رقم مل جائے اور ہم اپنا نیا کاروبار شروع کریں. دیکھیں جی، اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے، وہ بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں. بس آپ نے اس معلومات کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اب صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے معلومات کو سنا اور شام کو آپ کے گھر میں پیسے آ گئے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم صرف آپ کو صحیح معلومات دیتے ہیں، صحیح طریقہ کار بتاتے ہیں، اس پر عمل کرنے سے ہی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اب کیا آپ تیار ہیں ان اسکیموں میں اپلائی کر کے حکومت کی جانب سے یہ لاکھ روپے کی رقم لینے کے لیے؟ اگر ہاں تو اس معلومات کو غور سے سنیں اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام لازمی کر لے. ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہے. تو چلتے ہیں تفسیر کی جانب، غور فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں. دیکھیں جی، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اب حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو کافی مختلف قسم کی اسکیمیں دی گئی ہیں، ایسے ریلیف پروگرامز دیے گئے ہیں جن سے آپ ڈائریکٹلی طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیکھ لیں تو وہ غریب عوام کے لیے ہے اور تقریباً 1 کروڑ سے زائد خاندانوں کو کفالت کی رقم بھی ملتی ہے اور 1.25 کروڑ کے قریب بچوں کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد کو جب اتنی رقم دی جاتی ہے تو وہیں پر اس سے بھی بڑے بڑے پروگرامز جو ہیں الگ سے جاری کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو علم ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو علم نہیں ہوتا. حکومت کی جانب سے بزنس لون دیے جا رہے ہیں، ہوم لون دیے جا رہے ہیں، وہ بھی بغیر کسی سود کے. تو وہ بھی یقیناً آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. جو لوگ سود پر کوئی قرض اٹھا لیتے ہیں کسی پرائیویٹ کمپنی سے، کسی بندے سے، تو وہ ظاہری سی بات ہے اس پر سود بھی لگتا رہتا ہے، گناہ بھی الٹا ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ رقم ایک ساتھ ادا کرنی پڑتی ہے. مطلب آپ نے کہیں سے 5 لاکھ روپے لیے تو اس کا سود بھی آپ اوپر سے الگ ادا کریں گے اور پھر وہ شاید ہی قسطوں پہ آپ کو نہ ملے. بس آپ کو ایک وقت دیا جائے کہ فلاں وقت تک آپ نے سود سمیت اتنی رقم ادا کر دینی ہے. تو اس سے جب آپ کو چھٹکارا مل جائے اور آپ کو بغیر کسی سود کی ایک ایسی رقم دی جائے جس کی آسان ترین قسطیں بھی ہوں، خصوصی طور پر سب سے پہلے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ویسے یہ ایک ہماری سیریز ہے جس کے پہلے حصے میں ہم آپ کو ہوم لون کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اپنا گھر تیار کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے 5 لاکھ 10 لاکھ اور 15 لاکھ روپے کی رقم مل رہی ہے. اچھا، کافی سارے لوگ ابھی پوچھیں گے کہ بھئی یہ کس صوبہ کے لیے ہے. دیکھیں جی، اب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے بھی ایک ایسی اسکیم چلائی جا رہی ہے جس سے آپ 1 کروڑ روپے تک کی رقم لے سکتے ہیں، لیکن اس پر انٹرسٹ ریٹ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، 5 سے 10% تک بھی اس کا انٹرسٹ ریٹ ہے اور مطلب اس
पर इतना सूद लगेगा और उसकी मुद्दत जो है 20 साल तक है, ठीक है। अगर आप 10 साल के अंदर अंदर रकम वापस कर लेते हैं, जितनी भी आप रकम लेते हैं उस पर आपको उसी हिसाब से ही ये सूद देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हर सूबा के लिए, आप KPK से हैं, सिंध से हैं, पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से हैं, आजाद जम्मू कश्मीर से हैं, इस्लामाबाद से, जहाँ कहीं से भी हैं, ठीक है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो रकम भी मिल सकती है। लेकिन अभी हम उस बारे में आपको नहीं बताने जा रहे। अभी हम बगैर सूद के जो होम लोन आपको दिया जा रहा है 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कि अगर आपको अपना नया घर बनाना है तो उसके लिए आपको 15 लाख रुपए की रकम मिलेगी। अगर आपने पहले से मौजूद घर पे डबल स्टोरी बनानी है तो आपको 10 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। अगर आपने पहले से मौजूद घर की छतें मजबूत करवानी है, थोड़ी सी रेनोवेशन करवानी है उसकी, तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपए तक की रकम भी दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन उसके अलग अलग से क्राइटेरिया हैं, उनकी अलग अलग मुद्दत है कर्ज वापस करने की, तो उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि अब आपने नया घर बनाना है, 15 लाख रुपए के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें दरकार होंगी। देखें जी, बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जाते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा वक्त इस पे नहीं लगता, टोटली कोई 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आपको अपना शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा, जिसकी 2 तस्वीर लगेंगी, मतलब फ्रंट की भी और बैक साइड की भी ID कार्ड की तस्वीर लगेगी साथ में, वो आप अपने कैमरे से बना लेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपकी अपनी तस्वीर, जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड है, जिस बंदे के नाम पर आप ये दरखास्त दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसकी ओरिजिनल तस्वीर और वो फ्रेश होनी चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपके पास आपके रकबे की फर्द मलकियत होनी चाहिए। आपका जो प्लाट है जहाँ पर आप घर बनाना चाह रहे हैं, अगर शहर में है तो कम से कम आपके पास 5 मरले तक का प्लाट तो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देही इलाकों से हैं तो आप 10 मरले के प्लाट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा प्लाट, इससे ज्यादा रकबा है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस रकबे के लिए, जिस रकबे में आपने ये अपना मकान बनाना है, अपना घर बनाना है, तो उसकी आप फर्द मलकियत जो है वो निकलवा लेंगे, ठीक है। और वो आपको इजिली घर बैठे भी मिल सकती है, ठीक है। आप PLRA की ऐप इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर से मिल जाती है, ठीक है। उस पर सिंपली अपने ID कार्ड के थ्रू, अपने मोबाइल नंबर के थ्रू अपना अकाउंट रजिस्टर कर लें और फिर न्यू फर्द इशुएंस पर क्लिक करके आप अपनी फर्द खुद जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। उसकी गालबन तकरीबन कोई 1050 या 1100 रुपए तक की उसकी फीस होती है, वो आपने ऑनलाइन ही पे करनी होती है। उसका चलान निकल के आता है, वो इजी पैसा जायज कैसे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जो ही आप वो पे कर देंगे तो आप आसानी के साथ अपनी वो फर्द मलकियत डाउनलोड कर लेंगे, उसको अपने पास सेव कर लेंगे, तो वो भी आप साथ अपलोड करेंगे। देखें ये रिक्वायरमेंट्स आपको बताई जा रही हैं, इस 15 लाख रुपए की अप्लाई के लिए आपको कौन कौन सी चीजें दरकार होंगी, ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। इसके अलावा भी आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, आपका ID कार्ड नंबर, आपका इसके अलावा जो भी डेटा है, ठीक है, मुख्तसरन आपसे पूछा जाता है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं होती, ठीक है, तो वो आपने देनी होती है। आपका मोबाइल नंबर वगैरह भी, तो आपने मोबाइल नंबर हमेशा अपने नाम पर रजिस्टर्ड ही इसके साथ रजिस्टर करना है अप्लाई के दौरान। तो अब अप्लाई के लिए सिंपली आप किसी भी ब्राउजर में जाकर लिखेंगे acag.punjab.gov.pk। इसको ओपन करने के बाद आपको 2 अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको अपनी छत, अपना घर और अपनी छत, महफूज छत, इस तरह के 2 अलग अलग प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो आपने अपनी छत, अपना घर स्कीम में अप्लाई करने के लिए उस पर क्लिक कर देना है, जिससे आपको ये 15 लाख रुपए की रकम मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, अच्छा यहाँ पर आपको बता दें कि ये पोर्टल आपको बताया गया है, हम कोशिश करेंगे इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, वैसे भी आपको बता दिया गया है। तो अगर आपको इस पोर्टल पर बनी हुई वीडियो चाहिए कि आप अप्लाई कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कि आपने इस डब्बा में क्या लिखना है, इस जगह पे आपने क्या लिखना है, आपने फर्द मलकियत कैसे निकलवानी है, ID कार्ड कैसे अपलोड करना है, तस्वीर कहाँ पर लगानी है, अगर ये आपको वीडियो की सूरत में चाहिए तो फिर भी हम हाजिर हैं आपको इस हवाले से भी तफसीली तौर पर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे, इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसको देखकर आप खुद अप्लाई करेंगे। देखें अभी आपको मुख्तसरन बताने का मकसद हमारा यही है कि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, तो वो लोग आकर अभी हमें बताएं, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो की सूरत में मुकम्मल तरीकाकार चाहिए तो अभी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस लिख दें। जो बंदा यस लिखेगा उसको पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने कमेंट्स में यस लिखना है, तो तमाम कमेंट करने वाले और सब्सक्राइब करने वाले लोगों को ये तरीक़ाकार बताया जाएगा। इंशाल्लाह फिर आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे भी अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीद काफी है कि जो हमने इसी वीडियो में मुख्तसरन बता दिया है, तो जो लोग इन चीजों को समझते हैं वो अप्लाई जरूर कर पाएंगे, और इंशाल्लाह उस तरीक़ाकार के साथ ही हम आपको 10 लाख और 5 लाख रुपए का तरीक़ाकार भी बताएंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हमने आपके साथ एक और प्रोग्राम के बारे में भी
अभी बात करनी थी कि हुकूमत की जानिब से एक ऐसा प्रोग्राम आया था जिससे आपको 10 लाख रुपए तक की रकम दी जाती थी अपना कारोबार शुरू करने के लिए। 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की रकम। तो उस रकम के हवाले से या उस प्रोग्राम के हवाले से जिसे पंजाब आसान कारोबार कार्ड का नाम दिया गया था, तो वो शुरू में लोगों को कार्ड्स भी मिले, उनकी रकम भी आई, लेकिन बीच में कोई टेक्निकल इशू की वजह से उस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था। ठीक है, अभी भी आप उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए akc.punjab.gov.pk पर जाते हैं तो वहां पर आपको यही बताया जाता है कि अभी तक इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद है। तो उस स्कीम के हवाले से एक गुड न्यूज आई है, एक बावसूख ज़राए की जानिब से अपडेट मिली है कि अब सितंबर के महीने तक उस प्रोग्राम को दोबारा से रीलॉन्च करने का मंसूबा भी तैयार किया जा रहा है कि उस स्कीम को दोबारा से जारी किया जाए। जिन लोगों को वो आसान कारोबार कार्ड नहीं मिले थे वो अप्लाई करके आसान कारोबार कार्ड वसूल करेंगे। 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की रकम वो निकलवा सकेंगे और उसके बाद अपना कारोबार नए सिरे से शुरू कर सकेंगे, उसकी कोई शर्त नहीं होगी। ठीक है, तो हमने वीडियो के आगाज में भी आपको बताया कि 10-10 लाख रुपए तक की रकम मिल रही है, 15 लाख रुपए की रकम मिल रही है। तो अगर आप उस पंजाब आसान कारोबार कार्ड के हवाले से ये चाहते हैं कि उस स्कीम को दोबारा से जारी किया जाए, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन की जाए, तो अभी कमेंट्स में आसान कारोबार कार्ड लिख दें या यस लिख दें। ठीक है, यस 10 लाख लिख दें साथ में। ठीक है, तो इस हवाले से देखें वो बिजनेस लोन है, वो भी एक बहुत बड़ी सहूलत है आप लोगों के लिए। इसके अलावा भी आपको बता देते हैं कि अब हुकूमत ने एक और प्रोग्राम पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के नाम से भी जारी किया हुआ है। ठीक है, तो जिससे आपको 5 करोड़ रुपए तक की रकम मिल रही है। उसके लिए आपका पहले से एक बड़ा कारोबार होना लाजमी है। ठीक है, मतलब उसमें मजीद बेहतरी के लिए आपको इतनी बड़ी रकम दी जाती है। ठीक है, तो अगर उसकी भी मुकम्मल मालूमात चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, तो वो हम आपको अगली वीडियोस में बता देंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों को बताएंगे जो अभी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।